and Lesson 7 Packing from a textbook Beehive. So let's start. The lesson packing has been written by Jerome K. Jerome, and this lesson is an excerpt from the book Three Men in the Boat. So let's start. Let's, paragraph 1. I said I'd pack. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. So the narrator says he he proposed his friends that he would do packing. उसने अपने दोस्तों को बताया कि वो packing करेगा. And he was very proud of his packing ability. उसे अपनी packing ability पर काफी proud था. एंड ही फेल्ट उसे लगता था कि वो और लोगों की अपेक्षा पैकिंग ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है. ही वॉज एबल टू डू पैकिंग बेटर देन एनी अदर पर्सन. एंड इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देर आर. सो नरेटर को लगता है कि ही इज़ गुड एट मैनी अदर थिंग्स एंड दैट इवन ही डजंट नो. उसे खुद नहीं पता कि वो कितनी चीज़ों को अच्छे से कर सकता है. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. So उसने जॉर्ज और हैरिस जो उसके फ्रेंड्स थे उनसे कहा कि दे शुड लीव द पैकिंग मैटर टू हिम, कि वो जो पैकिंग का पूरा जो चार्ज है वो उसके लिए छोड़ दें और पैकिंग के लिए उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. दे नीडंट बी कंसर्न अबाउट पैकिंग. And they fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. और वो सजेशन से एग्री हो गए. They agreed to the suggestion of the narrator. But it was very strange and uncanny. George spread over the easy chair and Harris cocked his leg on the table. जॉर्ज जाकर जो है इजी चेयर पर बैठ जाता है और हैरिस जो है टेबल पर पैर फैला के बैठ जाता है. बिकॉज जॉर्ज एंड हैरिस को लगा कि पैकिंग में उन्हें कुछ नहीं करना है, सो दे कैन एंजॉय देमसेल्व्स. सो दे सेट लेजीली. पैराग्राफ 2. This was hardly what I intended. What I had meant, of course, was that I should watch the job and that Harris and George should potter about under my directions. I pushing them aside every now and then with, "Oh, you, here, let me do it. There you are, simple enough." Really teaching them, as you might say. नरेटर का जो इंटेंशन था पैकिंग करने का, इनफैक्ट करवाने का, तो इट डिडंट फुलफिल. उनका इंटेंशन फुलफिल नहीं हुआ. उसका ये था कि ही वांटेड टू वो बॉस ओवर देम. वो जो है उन पर बॉसिंग करना चाहते थे अपने फ्रेंड्स पर और उनको ऑर्डर पास करना चाहते थे. ही वांटेड टू पास ऑर्डर. उनको सिखाते हुए कि हाउ दे शुड डू पैकिंग. So he wanted to instruct them and he himself wanted to sit and he just wanted to instruct George and Harris to do the packing them by themselves, and he would sit and give the orders. They're taking it in the way they did irritated me. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I'm working. तो नरेटर को काफ़ी इरिटेबल लगता था जब दूसरे लोग बैठे हुए हैं और वो काम कर रहा है. पैराग्राफ 3. I lived with a man once
who used to make me mad that way. He would loll on sofa and watch me doing things by the hour together. Now, the narrator is recollecting an experience that he had with a man. वो कहते हैं कि एक आदमी उनको काफ़ी इरिटेट करता था, बस सोफा पर लॉल करता रहता था. दैट मीन्स यूज टू lie lazily on the sofa and नरेटर को काम करते हुए घंटों तक देखा करता था. एंड ही said it did him real good to look on at me messing about. और वो नरेटर से कहता था कि उसको बहुत मज़ा आता था उसको नरेटर को गलतियाँ करते हुए देखकर. Now I'm not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. लेकिन अब मैं जैसा नहीं हूँ. मैं आई कैंट सिट स्टिल, मैं शांत नहीं बैठ सकता एंड दूसरे लोगों को काम करते हुए नहीं देख सकता. I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pocket and tell him what to do. मैं अब चाहता हूँ सुपरिंटेंड करना और अपने पॉकेट्स में हाथ डाल के लोगों को ऑर्डर देना, उनको बताना कि क्या करना है. इट्स माई एनर्जेटिक नेचर, आई कैंट हेल्प इट. द नरेटर सेज कि ये मेरा नेचर है, मैं कुछ नहीं कर सकता. However, I did not say anything, but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be. But I got the bag finished at last and sat on it and strapped it. So narrator further says that उसने कुछ नहीं कहा, बस पैकिंग करता रहा. एंड उसे बहुत ऐसा लगा कि काफ़ी लंबा काम है, बहुत बड़ा काम है. जैसा उसने सोचा था उससे ज़्यादा समय लग गया उसको पैकिंग करने में. बट एट लास्ट ही वॉज एबल टू फिनिश द पैकिंग एंड ही सेट ऑन द बैग एंड उसने उसको स्ट्रैप कर दिया, यानी कि उसको जिप अप कर दिया. इंट गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस. हैरिस ने कहा, क्या बूट्स को आप बैग में नहीं रखोगे? एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन दैम. तो नरेटर ने मुड़कर देखा और उसे लगा, अरे बूट तो मैंने रखना ही भूल गया. दैट जस्ट लाइक हैरिस. उसने कहा, हैरिस ऐसा ही है. क्या वो मुझे नहीं बता सकता था कि बूट्स नहीं रखे? वो बैठे बैठे देख रहा है. He couldn't have said a word until I got the bag shut and strapped? Of course. And George laughed. One of these irritating, senseless laughs of his. And to make the matter worse, to add insult to injury, to add fuel to fire, जॉर्ज उस पर हंसता है और नरेटर काफ़ी इरिटेबल फील करता है. Paragraph 5. I opened the bag and packed the boots in. Then, just as I was going to close, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? मैंने बैग को खोला और बूट्स को पैक कर दिया. और जैसे ही मैं उसको बंद करने वाला था, एक हॉरिबल आइडिया मेरे दिमाग में आया. हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश? क्या मैंने अपने टूथब्रश को रख दिया? आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश. लेटर सेस, लेटर आगे कहता है कि पता नहीं कैसे बट उसे पता नहीं होता है कि उसने अपना टूथब्रश रखा है कि नहीं रखा. माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. उनका जो टूथब्रश है वो एक ऐसी चीज़ है जो उसको हमेशा हॉन्ट करती है, उसके दिमाग में घूमती रहती है जब वो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं और उनकी लाइफ को बहुत ही हेल बना देती है. उसे सपना आता है कि उसने अपना टूथब्रश को पैक नहीं किया है और वो जब उठते हैं तो पसीने में पाते हैं अपने आप को और बिस्तर से उठ के वो टूथब्रश को ढूंढना शुरू कर देते हैं. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट. और सुबह सुबह ब्रश करने से पहले ही उस ब्रश को जो है अपने बैग में वो रख देते हैं. एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट. एंड इट्स ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग.
and then I repack and forget it, and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station, wrapped up in a pocket handkerchief. तो फिर क्या होता है, वो ब्रश करने से पहले ही उस ब्रश को अपने बैग में रख देते हैं, तो उनको दोबारा से उसको अनपैक करना पड़ता है, बैग से निकालना पड़ता है, बैग को अनपैक करना पड़ता है. एंड ही फर्दर सेज, वो आगे कहते हैं कि इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और ये हमेशा आखिरी चीज़ होती है. जब बैग को जब अनपैक करते हैं तो ब्रश कहाँ मिलता है, सबसे नीचे, सभी चीज़ों के नीचे. तो सारा एक ब्रश के चक्कर में उनको पूरा सामान बाहर निकालना पड़ता है. ही हैज़ टू गेट एवरीथिंग आउट ऑफ द बैग, एंड ही जस्ट फाइंड द ब्रश एट द बेस ऑफ द बैग अंडरनीथ ऑल द थिंग्स. तो उनकी जितनी भी पैकिंग है वो सब बर्बाद हो जाती है, जस्ट गोज टू वेस्ट. और देन ही रीपैक एंड फॉरगेट इट, उसको फिर दोबारा से रीपैक कर देते हैं और ब्रश को निकालते हैं, ब्रश करते हैं, फिर भूल जाते हैं. एंड देन फिर जब वो बैग को लेकर जा रहे होते हैं, उन्हें याद आता है कि ये ही हैज़ फॉरगॉटन द ब्रश, एंड देन उनको ही हैज़ टू रश अपस्टेयर्स एंड जस्ट टेक द ब्रश. अब बैग तो पैक कर दिया है, अब उसके अंदर ब्रश को नहीं रख सकते, तो ही हैज़ टू कीप इट इन द हैंडकरचिफ. Of course, I had to turn every model thing out now, and of course, I could not find it. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created. And when chaos reigned, of course, I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. He further says, और आगे क्या होता है कि वो फिर भूल जाते हैं कि उनका ब्रश जो है उन्होंने हैंकरचिप में रखा हुआ है. और जब वो बैग को अनपैक करते हैं और जब वो ब्रश के लिए वो ब्रश को ढूंढते हैं, he finds everything but he can't find his brush, and he rummaged everything up into the much the same state they must have been before the world was created and when chaos reigned. So he finds George and Harris brush 18 times over, but he can't find his brush. I put the things one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. तो अभी जब वो अपना पैक कर रहे हैं, he is unable to find his brush, and finally he finds the brush in the boot, and then he has to repack the bag. When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and strapped it and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. It got shut up finally at 10:05 p.m. and then there remained the hampers to do. एंड जब नरेटर ने सारा काम फिनिश कर दिया, जॉर्ज ने उससे पूछा क्या तुमने साबुन रख लिया. देन द नरेटर सेज, मुझे कोई परवाह नहीं है साबुन रखा है या नहीं रखा है. एंड मैंने बैग को स्लैम शट कर दिया और उसको जिप लगा दिया. बट बाद में मुझे पता चला कि मैंने अपने स्पेक्टिकल्स अपने बैग के अंदर छोड़ दिए हैं. देन आई हैड टू रीओपन इट, दोबारा खोलना पड़ा और फिर उसे दोबारा लगाना पड़ा. फाइनली जो बैग है वो 10:05 पर शट हो गया. अब बच गए थे हैम्पर्स. हैम्पर्स आर द लार्ज बैग्स फॉर कैरिंग फूड. खाना ले जाने के लिए बड़े बड़े बैग्स, बड़े बड़े बास्केट्स होते हैं हैम्पर्स. तो हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम and thought that he and George had better do the rest, and I agreed and sat down and they had to go. हैरिस ने कहा कि उनको 12 घंटे के अंदर अंदर जो है उनको निकलना है, और
and thought that he had George had better do the rest, और उसने कहा कि जॉर्ज को जो है थोड़ा सा आराम करना चाहिए, उस जॉर्ज को हैरिस को दोनों को आराम करना चाहिए। एंड आई एग्रीड, मैं सहमत हो गया उनके साथ, एंड मैं बैठ गया, एंड दे हैड अ गो। They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. उन्होंने शुरू किया लाइट हार्टेड स्पिरिट के साथ, ये दिखाते हुए कि काम कैसे करते हैं। आई मेड नो कॉमेंट, आई ओनली वेटेड, मैं केवल इंतजार करता रहा। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। तो हैरिस जो है दुनिया का सबसे बेकार पैकर है। And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes, etc., and felt that the thing would soon become exciting. So मैंने देखा कि सब बिखरा हुआ है, प्लेट्स, कप्स, केटल्स, बॉटल, जार्स, पाइस, स्टोव्स, केक्स, टमेटोज, सब कुछ बिखरा पड़ा है, और फेल्ट कि अब मजा आने वाला है। इट डिड। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, और उन्होंने शुरू किया एक कप को तोड़ते हुए। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड। They did that just to show you what they could do and to get you interested. ये पहली चीज़ थी जो उन्होंने की, और ये चीज़ उन्होंने ये बताने के लिए की कि वो क्या कर सकते हैं, और इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon. Then Harris ने क्या गलती की, उसने स्ट्रॉबेरी जैम को जो है टमाटो के ऊपर रख दिया और उसको स्क्वैश कर दिया, उसको दबा दिया, उसको कुचल दिया, एंड फिर टमाटो को टीस्पून से बाहर निकालना पड़ा। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न, अब जॉर्ज का टर्न था। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, और उसने बटर के ऊपर पैर रख दिया। आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच्ड देम। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस आया और टेबल के किनारे, टेबल के ऊपर बैठ गया और उनको देखने लगा। यू कैन लुक एट द पिक्चर। The narrator is sitting on the table, George and Harris doing the packing of their food basket. His foot is on the butter, bread is just, things are just spread around. It irritated them more than anything, and I could have said, और वो irritate हो गए. I felt that. It made them nervous and excited. And they stepped on things and put things behind them, and they couldn't find them when they wanted them. और वो एक्साइटेड और नर्वस हो गए, और वो चीज़ों को ऐसी जगह रख देते थे कि उनको वो दोबारा नहीं मिलती थी। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, स्मैश्ड द पाइज इन, और उन्होंने पाइज जो कि केक होता है उसके ऊपर बहुत हैवी थिंग्स रख दी और उनको स्मैश कर दिया, पिचका दिया। They upset salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with bun and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. और उन्होंने हर जगह नमक फैला दिया, और जहाँ तक सवाल बटर का है, मैंने ऐसे दो लोगों को कभी ऐसे नहीं देखा कि 1 and 2 pence के जो बटर से इतना कुछ कर सकते हैं। After George had got it off the slipper, they tried to put it in the kettle. जॉर्ज ने जब उसको अपने पैर चप्पल से निकाला और फिर उसको केटल के अंदर रखने की कोशिश की, इट वुडंट गो इन, फिर वो उसके अंदर नहीं जा रहा है, एंड what was in wouldn't come out, और जो बटर उसके अंदर चला गया वो बाहर नहीं आ रहा है। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, और फिर उसको चम्मच से खुरच कर निकालना पड़ा, एंड पुट इट डाउन ऑन द चेयर, और उसको उन्होंने चेयर पर रख दिया। एंड हैरिस सेट ऑन इट, हैरिस उस पर बैठ गया, एंड स्टक टू हिम, और उससे चिपक गया वो।
एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। और फिर वो उस बटर को ढूंढ रहे हैं पूरे रूम में। I'll take my oath, I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. तो जॉर्ज जो है कसम खाते हुए कहता है, अरे मैंने तो उसको चेयर पे रखा था। I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. हैरिस भी कहता है, उसके साथ एग्री करता है कि हाँ मैंने देखा था तुमने एक मिनट पहले बटर को चेयर पे रखा था। Then they started round the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at one another. और वो बटर को इधर उधर ढूंढते हैं और वापस मिलते हैं और दूसरे को घूरते हैं। मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। जॉर्ज कहता है कि ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा कि ऐसा हो गया। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। उसके बाद जॉर्ज जो है हैरिस के पीछे जाता है और फिर उसको दिख जाता है कि जो बटर है उसके पीछे चिपका हुआ है। Why, here it is all the time, he exclaimed indignantly। और वो गुस्से में से कहता, अरे तो तुम यहाँ थे। Where? cried Harris, spinning round। हैरिस मुड़ते हुए कहता, कहाँ कहाँ? Stand still, can't you? roared George, flying after him। जॉर्ज उसको गुस्से में कहता, चुपचाप खड़े हो जाओ। And they got it off and packed it in the teapot। और फिर उसने उनको बटर को निकाला और उसको टीपॉट के अंदर रखा। Montmorency was in it all, of course. Montmorency's ambition in life is to get in the way, and we saw that. If he can squirm in everywhere where he particularly is not wanted, and be perfect nuisance, and make people mad, and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. Montmorency is the name of this dog. Now let's talk about him. तो मोंटमोरेंसी जो डॉग है उसका एम्बिशन लाइफ में क्या है कि लोगों के काम में टांग अड़ाना और फिर गाली खाना। एंड इफ यू कैन स्क्वाम इन एनीवेयर वेयर यू कैन पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड एंड बी परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक पीपल मैड। और जब वो ऐसा करता है उस जगह पर जाता है जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है और लोगों को परेशान कर देता है। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और गाली खाता है और अपने ऊपर चीज़ें फिकवाता है। तो उस कुत्ते को लगता है, मोंटमोरेंसी डॉग को लगता है कि आज उसका दिन बेकार नहीं गया है। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is the highest aim and object. And when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. तो ये बीच बीच में लोगों के आ जाता है, उनके ऊपर वो जो है जब ठोकर खा के गिर जाते हैं और उसको 1 घंटे तक गाली देते हैं। तो ये उसका हाईएस्ट एम है और ऑब्जेक्ट है डॉग का। उसको लगता है कि आज मेरा दिन बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ है क्योंकि मुझे 1 घंटे तक गाली खाने को मिली है। और उसका जो कंसीट है, उसका जो प्राइड है, वो अनबेरेबल हो जाता है जब वो इन चीज़ों को अकम्प्लिश करने में सफल हो जाता है। He came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. So वो चीज़ों पर बैठ जाता है और जब उन चीज़ों को पैक करना होता है तो he labored under the fixed belief that whenever Harris and George reached out for their hand anything, it was his cold damp nose that they wanted. तो उसको लगता है कि जब उनको वो चीज़ चाहिए होती है तो मोंटमोरेंसी को लगता है कि वो उनके ऊपर बैठ जाए और उसकी नोज़ को वो छुए। He put his leg into the dam and he worried the teaspoons, and he pretended that the lemons were rats। So उसने अपने पैर को जैम के अंदर रख दिया और टी स्पून्स को जो है डिस्टर्ब कर दिया और लेमन्स के साथ वो खेल रहा है उनको चूहे समझ के। एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड 3 of them बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन। और 3 लेमन्स को उसने हैम्पर्स में से निकाल के बर्बाद कर दिया। उसके बाद हैरिस ने उसको
फ्राइंग पैन से उसके सर में मारा. Harris said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. It's the natural, original sin that is born in him that makes him do things like that. हैरिस ने कहा कि मैंने उसको इनकरेज किया है. मैंने उसे इनकरेज नहीं कहा किया. और ऐसे डॉग को इनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है. ये उसका नेचुरल ओरिजिनल सिन है जो कि उसके साथ पैदा हुआ है. The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. He also said he was ready for bed. We were all ready for bed. Harris was to sleep with that night and we went upstairs. पैकिंग 12:50 पर हुई और हैरिस जो है हैम्पर पर जाके बैठ गया और उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ नहीं टूटा हो. जॉर्ज ने कहा कि अगर कोई टूट भी गया हो तो टूट गया, क्या कर सकते हैं. एंड उसने कहा कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे सोना है. और सब लोग थक गए थे और सब लोग ऊपर गए. हैरिस भी उनके साथ चला गया. We tossed for beds and Harris had to sleep with me, he said. और वो अपने अपने बिस्तर पर चले गए और हैरिस जो है नरेटर के साथ सोया. उसने कहा, डू यू प्रिफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे. जे मीन जरोम. I said I generally prefer to sleep inside a bed. Harry said it was odd. George said, what time shall I wake you fellows? Harry said 7. I said no, 6 because I wanted to write some letters. So ऐसे ही ये कुछ मस्ती कर रहे हैं. They are just talking some funny talks and they decided that they would wake up at 6 a.m. in the morning. Harris and I had a bit of a row over it, but at last split the difference and said half was 6. हालांकि इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई कितने बजे उठना है, but finally they decided they would wake up at 6:30. And George made no answer, and we found on going over that had been asleep for some time, so we placed the bath where we could tumble into it on getting out in the morning, and we went to bed ourselves. जॉर्ज ने कुछ उत्तर नहीं दिया और हमें एंड वी फाउंड कि वो पहले से सोया हुआ है. सो हैरिस एंड नरेटर ने एक प्लान सोचा. उन्होंने उसके बिस्तर के नीचे एक बात रख दिया ताकि जब वो सुबह उठेगा तो वो जो है सीधा टंबल करके ठोकर का करके पानी के अंदर गिर जाएगा और ये दोनों सोने चले गए. They were very funny, very naughty. Okay, so this is the end of this lesson. Packing by Jerome K. Jerome. An extract from Three Men in a Boat. Thank you. Have a nice day. See you in the next lecture. Till then, goodbye and take care.